رمضان المبارک کے دوران گراں فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری، چھٹے روز 232 منافع خوروں کے خلاف ایکشن، 23 لاکھ سے زائد جرمانے عائد اور 2 دکانیں بھی سیل کی گئیں۔ کمشنر کراچی کی زیر نگرانی رمضان کے چھٹے روز 232 گراں فروشوں کے خلاف کارروائی کی گئی، 23,14,000 روپے سے زائد جرمانہ عائد کیا گیا، 2 دکانیں سیل کی گئیں۔ انتظامیہ کے مطابق 1089 مقامات پر قیمتیں چیک کی گئیں اور 189 مقامات پر سرکاری نرخوں پر اشیاء خورنوش کی نیلامی کی گئی۔ کمشنر آفس کی جاری کردہ رپورٹ کے مطابق 6 روز میں مجموعی طور پر 1297 گراں فروشوں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے 1,18,14,000 روپے سے زائد جرمانہ عائد کیا گیا۔ ایل پی جی کی 271 دکانیں بھی سیل کی گئیں۔ ضلع کماڑی میں پرائس چیکنگ اور انسدادی تجاوزات جاری۔ ڈی سی کماڑی امیر فضل اویسی کہتے ہیں کہ 21 منافع خور جیل بھیجے جا چکے، 14 دکانیں سیل کی، چاروں سب ڈویژنز میں گرہ فروشی پر 3 لاکھ سے زائد جرمانہ کیا۔ دیکھتے ہیں رضوان احمد کی یہ رپورٹ۔ بلدیہ ٹاؤن میں جو ہماری جوبس کی مارکیٹ ہے، وہاں پہ ہم نے اینٹی انکروچمنٹ کی ڈرائیو سٹارٹ کی ہے تاکہ اس مارکیٹ کی گلیاں کھلی رہیں اور وہاں پہ آنے جانے کا جو ہے وہ لوگوں کو کسی بھی اوقات میں دقت نہ ہو۔ ہمیں جو سب سے بڑی دقت یہاں پہ آ رہی ہے ٹوٹل آپریشن کرتے ہوئے، وہ ہمارے پاس جو رات کے ٹائم میں 4 دفعہ آگ لگی ہے۔ بلدیہ میں 2 انسیڈنٹس ہوئے ہیں، ایک ہمارا سائٹ میں انسیڈنٹ ہوا ہے، دوسرا بھی ہمارا سائٹ میں انسیڈنٹ ہوا ہے، سرف ایکسل میں ہوا ہے، ایک یہاں پہ امپوریم کا ہوا ہے۔ تو ان کی وجہ سے ہمارے پاس کچھ ٹائم لیگ آ رہا ہے، ادروائز وی آر ڈوئنگ اوور بیسٹ۔ ڈپٹی کمشنر کیماڑی امیر فضل اویسی نے اس عزم کا اظہار کیا کہ رمضان مبارک میں شہریوں کو زیادہ سے زیادہ ریلیف فراہم کرنے کے لیے گراں فروشی اور تجاوزات کے خلاف یومیہ بنیاد پر کارروائیاں جاری رکھیں گے۔ کیمرامین اجلان چیبا کے ہمراہ رضوان احمد، سٹی۔ شہر میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ سنگین صورت اختیار کر گیا۔ ماہ مبارک میں بجلی بندی سے کاروباری سرگرمیاں شدید متاثر ہو گئی ہیں۔ اولڈ سٹی ایریا اور اردو بازار میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ سے کاروباری برادری ذہنی اذیت میں مبتلا ہے۔ رمشا اسماعیل کی رپورٹ۔ ماہ سیام کے دوران بجلی کا بحران شدت اختیار کر گیا، شہری 10 سے 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ جھیلنے پر مجبور۔ اردو بازار اور ملحقہ علاقوں میں غیر اعلانیہ طویل لوڈ شیڈنگ سے کاروباری سرگرمیاں ماند پڑنے لگی۔ بجلی نہ ہونے کے باعث خریدار بازاروں کا رخ نہیں کر رہے، جس سے آمدنی میں کافی حد تک کمی ہو گئی ہے۔ تقریباً جو ہے نا 6 سے 7 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے۔ لازمی بات ہے جب رات کو ہماری لائٹ جاتی ہے نا جب عموماً، تو اس میں ہمیں بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے ہمارا کاروبار، کیونکہ جب اندھیرا ہوتا ہے تو لازمی بات ہے کسٹمر کیسے آئے گا۔ دکانداروں کا کہنا ہے کہ بجلی نہ ہونے کے باعث فوٹو کاپی مشین، پرنٹر مشینیں اور کمپیوٹر بند ہو جاتے ہیں، جس سے روزانہ کی بنیاد پر مالی نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ کاروباری برادری کا کہنا ہے کہ وہ باقاعدگی سے بل ادا کرتے ہیں، اس کے باوجود غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ سمجھ سے بالاتر ہے۔ ہمارا تو خیر لائٹ کا ہی کام ہے سارا، لائٹ نہیں ہوگی تو ہمارا کاروبار ہی نہیں ہوتا ہے۔ سارا دن یہی ہوتا ہے، روزانہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے لوڈ شیڈنگ رہتی ہے ادھر۔ کاروباری برادری نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ رمضان کے دوران تجارتی مراکز کو بجلی بندش سے مستثنی قرار دیا جائے۔ کیمرامین منان کے ساتھ رمشا اسماعیل، سٹی 21۔ مہران ٹاؤن کا جلال چوک جانے والا مرکزی روڈ خستہ حالی کی بدترین مثال بن چکا ہے۔ شہریوں کے لیے اس ناہموار سڑک پر سفر کرنا امتحان بن گیا۔ وسیم افتخار کی رپورٹ دیکھیں۔ سڑک کم، گھروں کا جال زیادہ، مہران ٹاؤن کے مکینوں کے لیے سفر امتحان بن گیا۔ مہران ٹاؤن سے جلال چوک تک جانے والی یہ اہم سڑک عرصہ دراز سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ جگہ جگہ گہرے گڑھے نہ صرف ٹریفک کی روانی متاثر کر رہے ہیں بلکہ حادثات کے خطرات میں بھی اضافہ کر رہے ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ روزانہ اسی سڑک سے گزرنا ان کی مجبوری ہے، مگر خستہ حالی کے باعث پیدل چلنا بھی دشوار ہو چکا ہے۔ بارش کے دوران صورتحال مزید خراب ہو جاتی ہے، پانی گڑھوں میں جمع ہو جاتا ہے اور یہ اندازہ لگانا مشکل ہو جاتا ہے کہ سڑک کہاں ختم ہوتی ہے اور گڑھا کہاں شروع ہوتا ہے۔ بہت مشکل ہے سر جی، بہت ہی مشکل ہے۔ پانی بارش آتا ہے کھڑا ہوتا ہے، مسئلہ ہوتا ہے پانی، گاڑیاں واڑے آتے ہیں، کوئی نماز کے لیے آنا جانا ہوتا ہے، بڑی مشکل ہوتی ہے جی۔ روز کے بوڑھے بدنے ہوتے ہیں، بوڑھے ہوتے ہیں، بیویاں ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، بڑی مشکل ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے۔ پریشانی ہے سر، ادھر روڈ بنانے والا نہیں ہے، پریشانی ہے، روڈ نہیں ہے، گھر نہیں ہے، ادھر بارش میں تنگ ہو رہے بندے، یہی ہے پریشانی، زیادہ انسان ہو رہا ہے۔ روڈ کے اطراف فیکٹریاں، گودام اور رہائشی مکانات بھی موجود ہیں، جس کے باعث دن بھر ٹریفک کا دباؤ رہتا ہے۔ شہریوں کا مطالبہ ہے کہ متعلقہ حکام فوری نوٹس لیتے ہوئے مہران ٹاؤن سے جلال چوک تک اس اہم شاہراہ کی تعمیر و مرمت یقینی بنائیں تاکہ عوام کو درپیش مشکلات کا ازالہ ہو سکے۔ کیمرامین امجد علی کے ساتھ وسیم افتخار، سٹی 21۔ کراچی پریس کلب کے باہر آئی بی اے پاس 319 میوزک ٹیچرز نے جوائننگ لیٹر نہ ملنے پر احتجاجی کیمپ لگا لیا۔ اس قبل میں یہی ٹیچرز احتجاجی دھرنے دے چکے ہیں۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ ہر صورت اپنا حق لے کر رہیں گے۔
मोहम्मद खुर्शीद ऑर्डर्स न मिलने के खिलाफ अनोखा एहतजाज। मुजाहिरीन ने सूफियाना कलाम गाकर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। मुतालबात मंजूर न होने की सूरत में रेड जोन पेशकदमी का इंदिया। कराची प्रेस क्लब के बाहर IBA पास 319 म्यूजिक टीचर्स ने अपने मुतालबात के हक में एहतजाजी कैंप कायम कर दिया। म्यूजिक टीचर्स ने शिकवा किया कि टेस्ट पास करने के बावजूद इन्हें इनके हक से महरूम रखा जा रहा है। मुजाहिरीन अपने हक के लिए डट गए, कहते हैं अपना हक लिए बगैर यहाँ से नहीं जाएंगे। हमारे पास डायरेक्टर एजुकेशन भेजा गया था किशोर कुमार, तो उन्होंने कहा कि भाई हम जो है तो आपको कुछ दिनों में ज्वाइनिंग दे रहे हैं। उनके बाद ये लॉलीपॉप है। हम यहाँ पे बैठे रहेंगे, भले हमें मार दें, तशद्दुद करें, रगड़ दें, लेकिन हम अपना हक जो हम IBA पास आउट कैंडिडेट है, हमने IBA के टेस्ट पास किए, ये जितने भी बैठे हैं ये IBA पास आउट कैंडिडेट है, अपनी ज्वाइनिंग के लिए बैठे हैं। फिर इन्होंने AG के पास हमें भेजा कि हम कानूनी भी मदद आपकी करेंगे, लेकिन दोनों तरफों से इन्होंने हमें झूठ ही बोला है, कोई हमें ज्वाइनिंग नहीं दी इन्होंने अभी तक। एहतियाजी कैंप में म्यूजिक टीचर्स ने सूफियाना कलाम पेश करके शहरियों को अपनी तरफ मुतवज्जा कर लिया। म्यूजिक टीचर्स इससे कबल भी प्रेस क्लब के बाहर एहतिजाजी कैंप लगा चुके हैं, लेकिन इस मरतबा इस अज़्म का इजहार किया है कि हम अपना हक मांगने आए हैं, पुरअमन तरीके से सिंध असम्बली जाएंगे और अपना हक लेकर रहेंगे। कैमरामैन अब्दुल कईम शेख के हमरा मोहम्मद खुर्शीद रहमानी, सिटी 21। सिंध हाई कोर्ट, आईनी बेंच और दीगर अदालतों में केसेस की समाअत और फैसलों के हवाले से देखिए ये रिपोर्ट। लावारिस यतीम बच्चों की रजिस्ट्रेशन शिनाख्त के केस की समाअत। अदालत ने नादरा को मशावरत से रजिस्ट्रेशन मैकेनिज्म बनाने का हुक्म दे दिया। 8 हफ्तों में अमल दरामद रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत कर दी गई। सिंध हाई कोर्ट में कोरंगी 2.5 नंबर फूड स्ट्रीट के खिलाफ दरखास्त पर समाअत हुई। TMC ने कानूनी मंजूरी और जवाब अदालत में पेश कर दिया। अदालत ने केस की समाअत 8 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। सिंध हाई कोर्ट में गुलशन जमाल में पानी की अदम फराहमी की दरखास्त की समाअत हुई। अदालत ने दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। सिंध हाई कोर्ट ने दरखास्त की मजीद समाअत 26 मार्च तक मुलतवी कर दी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में मुलजिम अरमगान के नफ्सियाती इलाज के लिए बोर्ड तश्कील देने की दरखास्त। मुलजिम अरमगान का वकील की खिदमत देने से इनकार। मैंने वकील को हायर नहीं किया और ना अथॉरिटी दी है। मुलजिम अरमगान। अदालत ने समाअत 26 फरवरी तक मुलतवी कर दी। आई टैंकर की टक्कर से कमसन बच्ची के जाबाग और 2 अफराद के जख्मी होने का मुकदमा पुलिस ने गिरफ्तार मुलजिम अब्दुल कादिर को अदालत में पेश किया। तफ्तीशी अफसर की मुलजिम के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा। अदालत ने इस्तदा मुस्तरद हुए मुलजिम को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया। आगे बढ़े, आपको बताएं कि शहर कायद में मॉडर्न पुलिसिंग की जानिब अहम पेशरफ्त हुई है। हाई डेफिनेशन हाई टेक कैमरों की तनसीब का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया। चीफ कम्युनिटी पुलिसिंग के मुताबिक पहले मरहले में शहर की अहम शाहराहों पर जदीद कैमरे नस्ब किए जा रहे हैं जो 2 किलोमीटर तक जूम करने की सलाहियत रखते हैं। तफसीलात उसामा मलिक की रिपोर्ट में देखिए। जदीद टेक्नोलॉजी से अब हर हरकत पर नजर रखी जाएगी। 2 किलोमीटर तक जूम करने वाले कैमरों की तनसीब शुरू। शहर कायद में कम्युनिटी पुलिसिंग के अहम इकदामात के तहत हाई डेफिनेशन हाई टेक कैमरों की तनसीब शुरू हो गई है। जदीद कैमरा सिस्टम का मकसद शहर भर में सिक्योरिटी को मजीद मौसर बनाना, स्ट्रीट क्राइम पर काबू पाना और शहरियों को महफूज माहौल फराहम करना है। चीफ कम्युनिटी पुलिसिंग मुराद सोनी का कहना है कि कराची में हाई डेफिनेशन हाई टेक कैमरों की तनसीब का बाकायदा आगाज हो चुका है। पहले मरहले में 10 कैमरे नस्ब किए जा रहे हैं, जबकि मजीद 50 कैमरे भी जल्द लगाए जाएंगे और ये कैमरे 2 किलोमीटर तक जूम कर सकते हैं। कराची शहर बहुत बड़ा है, तो हमने इसका यही एक हिसाब निकाला है कि ऐसे कैमरे लेके जाएं जो 1.5 से 2 किलोमीटर का हो। जो ये वाला जो कैमरा जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसके आप जिक्र कर रहे हैं, जो हम लगाने जा रहे हैं, इनिशियली तो अभी हम 10 लगाने जा रहे हैं। इसके बाद ये हम पहले फेज़ में 50 कैमरे इसी साल लगा देंगे इंशाल्लाह। हम 10 कैमरे लगाने के बाद हम इसका रिस्पॉन्स देखेंगे कि जितनी चीज़ें हमने इसमें देखी वो सब चीज़ें आ रही है। जिस तरह ये 2 किलोमीटर की रेंज भी देख सकता है, बड़ी इमारतों को देख सकता है, कहीं अल्लाह ना करे आग लग जाए, कोई ऐसा कोई हादसा हो जाए या कोई टेररिस्ट अगर किसी बिल्डिंग में दाखिल होते हैं, तो ये इसको बहुत सारी वजूहात को रख के हमने देखा है। मुराद सोनी ने मजीद बताया कि ये जदीद कैमरा सिस्टम शहर भर में सिक्योरिटी को मजीद मौसर बनाने, स्ट्रीट क्राइम की रोकथाम और शहरियों को महफूज माहौल फराहम करने में अहम किरदार अदा करेगा। हमारा मकसद जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए कराची को एक महफूज और स्मार्ट सिटी में तब्दील करना है। ये कैमरा 2 किलोमीटर का जूम है इसका, तो इसमें जो सबसे बड़ी खूबी वो ये कि ये 1 किलोमीटर तक फेस रिकग्निशन करेगा, नंबर प्लेट ले लेगा और ये ऑटो पेट्रोलिंग भी है। कम्युनिटी पुलिसिंग हुक्काम के मुताबिक कैमरों की तनसीब पर तकरीबन 4.5 करोड़ से ज़ायद अखराजात आएंगे और इससे मुस्तकबिल में पुलिस को मुल्ज़िमान को पकड़ने और दीगर कामों में बहुत मदद मिलेगी। कैमरामैन शाजिब रजा के साथ उसामा मलिक, सिटी 21। सफूरा टाउन में तरक्याती मंसूबों का सिलसिला जारी है। रात गए चेयरमैन सफूरा टाउन राशिद खासकेली ने सचल UC3 में मुतअद्दिद मंसूबों का इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताही तकरीब में टाउन और UC क़यादत समेत आवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। रिजवान अहमद की रिपोर्ट।
सफूरा टाउन में तरक्याती कामों का दायरा वसी होता जा रहा है। चेयरमैन सफूरा टाउन राशिद खासखेली ने सच्चल UC3 में खूबसूरत मोनोमेंट ग्रीन बेल्ट और दिलकश वाटरफॉल्स का इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताही तकरीब में वाइस चेयरमैन अब्दुल हक बलोच, UC चेयरमैन ताज मोहम्मद वसान, अरकान कौंसल और इलाका मकीनों की बड़ी तादाद शरीक हुई। टाउन चेयरमैन राशिद खासखेली का कहना था कि सच्चल UC3 एक बड़ी यूनियन कमेटी है जिसकी सूरत हाल मरहला वार मुकम्मल किए जा रहे हैं। आज हमने सच्चल के हवाले से ब्यूटिफिकेशन का इफ्तिताह किया है जिसमें चौरंगी शामिल है, वाटरफॉल शामिल हैं और ग्रीन बेल्ट शामिल है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इससे पहले भी हम रोड का इफ्तिताह कर चुके थे और इंशाल्लाह आइंदा 10 से 15 दिनों में एक और हमारी चौरंगी है, मद्रास चौरंगी, हम उसका इफ्तिताह करने जा रहे हैं। सदर PS 98 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बशीर खासखेली बोले कि पीपल्स पार्टी काम पर यकीन रखती है और सफूरा टाउन में सड़कों के इंफ्रास्ट्रक्चर समेत दीगर मंसूबों पर भी जल्द काम शुरू किया जाएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान के अंदर वाहिद वो जमात है जो गरीबों के लिए, जिसका नारा रोटी कपड़ा और मकान है। आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का UC चेयरमैन हो, टाउन चेयरमैन हो या मेयर हो या उनके मिनिस्टर हों, हर जगह पे दिन रात वो काम कर रहे हैं ताकि अवाम उन्नास को सहूलियात फराम की जाएँ। सफूरा टाउन में जारी तरक्याती मंसूबों से इलाका मकीनों को बेहतर सहूलियात की उम्मीद है। अब देखना ये है कि तरक्की का ये सफ़र किस रफ्तार से आगे बढ़ता है। कैमरामैन मोहम्मद रमीज़ के साथ रिजवान अहमद, City 21। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार मंदी पर बंद हुआ। 100 इंडेक्स में 1432 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई। इंडेक्स 1,66,258 की सतह पर आ गया। काविश मेमन की रिपोर्ट। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज भी दिन भर उतार चढ़ाव रहा। कारोबार का इख्तिताम मंदी पर हुआ जहां 100 इंडेक्स 1,432 पॉइंट्स की कमी से 1,66,258 की सतह पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान इंडेक्स की बुलंद तरीन सतह 1,69,237 जबकि कम तरीन सतह 1,63,907 रही। स्टॉक माहिरीन के मुताबिक रिजल्ट सीजन, रोल ओवर वीक और अमेरिका ईरान कशीदगी के बायस मार्केट में मंदी का रुझान देखा जा रहा है, जिसके नतीजे में सरमायाकारों ने मोहतात हिकमत अमली इख्तियार की। मुज़ाकरा तो ऐसा है कि अभी कुछ है अभी कुछ है, और दूसरा ये कि हमारे साथ जो अफगानिस्तान मामला भी चल पड़ा है उसको भी थोड़ा सूरत हाल को ये मार्केट ख़राब कर रही है। दूसरी वजह ये कि ये वीक जो है रोल ओवर वीक है, तो इसमें बदला जो अपना हाई पे था तो लोग अपना जो बदले का माल है वो सेटल कर रहे हैं, इसकी वजह से भी सेलिंग ज़्यादा है। तो ये हफ्ता इसी तरह गुजर जाएगा। जैसे कल भी मैंने कहा था कि लगता नहीं था मार्केट, और कल भी मार्केट तकरीबन 6,000 पॉइंट के करीब नीचे हुई, और आज भी तकरीबन ऐसे ही लग रहा है कि उतर चढ़ाव करके आखिरी में मेरे ख्याल 2-2,500 पॉइंट से ज़्यादा माइनस हो सकती है। गुज़िश्ता रोज 100 इंडेक्स 1,67,691 की सतह पर बंद हुआ था। कैमरामैन आगा रफीक के साथ काविश मेमन, City 21। आलमी मार्केट में सोने की कीमत में $34 फी औंस इजाफा, कीमत $5,172 फी औंस तक पहुँच गई। बैनुल-अक़वामी मार्केट में इजाफे के असरात मुकामी सराफा बाजारों में भी देखने में आए, जहां फी तोला सोना 3,400 रुपये महंगा होकर 5,39,962 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोना 2,915 रुपये इजाफे से 4,62,930 रुपये पर पहुंच गया। इधर चांदी की कीमत में भी इजाफा हुआ और फी तोला चांदी 192 रुपये महंगी होकर 9,286 रुपये की सतह पर आ गई।